Okay. So this is our 11th lecture for higher education, and we are studying Constitution of India. Let's start. I hope my screen is visible to you all. दिखाई दे रहा है सबको? क्योंकि मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है. Whatever you are like making remark or whatever way you are replying, I hope it's visible to you. Now we were discussing about the Constitution of India, when it is formed, how it is formed, how many articles. Anything in chat box? You can open up your mouth, unmute yourself and say. बोल के बताइए. दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. ओके. वो तो लास्ट टाइम. हाँ, यहाँ से शुरू होगा. Last time we were there. Now today we'll see what are the salient features of Constitution. So the main factors, which is the main thing about the, or you can say the characteristics of our Constitution, is very first thing is its preamble. Then the fundamental rights. The fundamental, as I discussed and as I said earlier in earlier lecture, our constitution is, you can say, extract of so many constitutions from so many countries. Now, fundamental rights, which is a privilege given to the citizens of any country, is taken from the American Bill of Rights. Then directive principles, they are taken from the Irish Constitution. And then the federal setup. Federal setup means we are having a central government, and then the central government has the supreme government, but we have a state government we are having so many different states, and for that states, the governing body is selected by the people of that state, that is the state government. And then there is an act, which is a Government of India Act 1935. Now, some prominent features, some prominent, you can say, the specialities or the main characteristics of our constitution is that we are having a federal polity. All right. And these 5 words, it is very, very important. Sovereign, socialist, secular, and democratic republic we are having. All right. We are having a parliamentary form of government. The first thing is federal means we are having dual polity. Federal means dual. Dual means state and central government. Okay. And then this second most point is these 5 letters, 5 words: sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Now this is a very important aspect of our constitution. It is sovereign. Sovereign means this constitution is the supreme power. It has the supreme power. It has the, extremely important in every sector of a nation, of a country. All right. In every sector, the constitution plays a supreme a role, you can say, extremely powerful. Whatever written in the constitution, whatever the articles, the various regarding any aspect regarding the state, how the state government will be formed, how the you can say district divisions, how of the you can say administration part, the
you can say election is going on. Everything is there in the Constitution. So it is supremely powerful document. Then it is a socialist. Socialist means we are having uh, you can say social environment, related to you can say uh, very important is that we are having a mixed economy, mixed culture. So we are having a different societies, different religion, different you can say languages, different cultures, different traditions. So basically, if you say we as a nation, as a country, we are one. Like we are not divided according to the region, according to the language, or according to you can say some culture. So basically, the economy, when we said it is a mixed economy, but as a whole, it's a national economy. Then secular means what? If we any state in our country is having no religion, is religion free. Like in every state, we are having different religion, different type of people, different type of languages, different type of cultures. So a particular state is not like you can say it's a state which belongs to a particular religion. No. So every state is secular in that sense. Then democratic means we are like we all in our country, we are, and at the same time, when we say secular, that means every state or every district or every division or every place treats all the religions, all the cultures equally. Right? No state is like officially, according to the constitution, it never give a preference to a particular religion constitutionally. And then democratic means all the rulers or all the government, or what we say, the rulers or the authorities or the ministers, they are elected by the people. And those authoritative people, they are responsible for the people, for the citizens of our country. And it is republic because we have a fair election. You can say it has an elected head of state. In every state, the head is elected by the people. As a nation, if you say the leader or the prime minister is elected by indirectly by the people of country. So that's why जनता द्वारा शासन, हाँ, डेमोक्रेटिक. सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर है. हाँ, हर धर्म का व्यक्ति रहे, उसे समान अधिकार मिले, है ना. कहीं कोई प्रेफरेंस किसी जाति, किसी धर्म के आधार पर उसको ना मिले. इस तरह से secular means every single religion is equal in front of the constitution. All right. And then parliamentary form of government. Parliamentary form, you can say we are having a parliament section. That means we are having two houses. And basically the constitution gives, under the constitution, we are having three parts. One is president, then our prime minister, and and this the three constituents, you can say, Lok Sabha, Rajya Sabha, the two parliamentary sections, and above all, above the two, it's president. So you can say the president of the central government or the union is the constitutional head of the state, head of the nation, and prime minister is considered as a head of the government. Who is directly involved in making the policies, running the government, running the administration in right direction. So, and fundamental rights is again a very important, you can say, very
very, very important for a citizen of our country, because it gives, to relish some powers as an individual, as a citizen. So these fundamental rights are in Part 3 of the Constitution, and they can, in some way or the other, indirectly, you can say it's some form of, a restriction on the power of the government. So every single citizen enjoys, certain rights, certain powers as a whole, as an individual. And these rights are protected by the Supreme Court. If some citizen or some person feel something is going against him lawfully, then he can approach, or she can approach to the judiciary system and get the, you can say, justice. And then there is independent judiciary. It is supposed that this judiciary system is, you can say, it is independent of any government, any party, any selected body. It is having its own powers they are having, you can say. And in all, you can say, at the end, the Supreme Court is independent and impartial. And you can say it's a safeguard, for the people, for the fundamental rights. And also it is responsible to, make some settlement if there is any dispute between the different government, like state government or central government. So basically, to give a transparent system for the people, for the various form of governments in the country, this plays an important role. Then we have, in our constitution, we have single citizenship. Single citizenship means any person who, voluntarily acquires some citizenship of any other country, then it is not an Indian citizen any longer. In some special cases, if somebody, applies, or there are certain conditions, then you can say citizenship, Indian citizenship can be awarded. Otherwise, the constitution follows a single citizenship rule. Then we are having some fundamental duties. Now these were introduced under 42nd Amendment in 1976, and these are intended, to balance the fundamental rights, because everything beyond a limit, it becomes crucial, it becomes a problem to others. So there should be some limit, there should be some, you can say, check. So for that we are having fundamental rights. So they are also justiciable. तो हिंदी में देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान है उसकी कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें जो कि बहुत बहुत अनोखा बनाती हैं, उसे बहुत यूनिक बनाती हैं, बहुत अलग बनाती हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरे कंट्री के। क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया का जो संविधान बना भारत का, वो बहुत कहना चाहिए कि रिसर्च के बाद बहुत सारे संविधानों को, बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़कर, एनालिसिस करके, और हमारे लिए क्या सुटेबल है उसमें, वो चीजें उनमें से निकाली गई और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, वो है भारतीय संविधान। तो उसकी जो सबसे पहली चीज है वो है उसका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कह सकते हो आप कि जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो उसका एक तरह से उसके अंदर क्या है, उसका एक एक्सट्रैक्ट वर्जन जो है, पहला पेज, वो है प्रीएम्बल। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, या कोई भी एक तरह से इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई भी नियम कानून, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी लॉज बनाते हैं जो सभी सेक्टर को एक साथ रखते हैं, उसका एक कहना चाहिए जो बिगनिंग होती है, उसका
जो इंट्रोडक्टर पार्ट होता है कि हाँ ये चीजें हैं, मेन जो बातें हैं, जो मेन जिसका भी आप कह लो कि जब भी कोई स्टार्ट करते हैं हम, तो एक चीज, एक ऐसा पेज किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कि आपको उस कंटेंट के बारे में बताए एक तरह से, वो होता है प्रियम्बल। और ये जो है इसको एक अलग कैटेगरी में डालता है, क्योंकि उस प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं कि क्या क्या उसमें लिखा गया। ये जो हम 4 वर्ड पढ़ते हैं, सोवर्जी, या इसको हिंदी में बोलेंगे कि संप्रभुता, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो चीजें हम पढ़ते हैं, ये सब चीजें जो है और ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, ये किसके लिए बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सब की जो एक रूपरेखा है एक तरह से आप ये कह लो, वो होता है प्रियम्बल। और दूसरी चीज जो इसको अलग बनाती हैं, कुछ अलग कैटेगरी, एक अलग लेवल पे लाती हैं, वो जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, जो आगे के पॉइंट्स हैं, वो हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। आपको हर नागरिक को जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो अधिकार लिए गए हैं, ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से लिए गए। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप कह लो, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, ये तो मुझे याद नहीं है। तो उसको वो जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। फेडरल सेटअप किसको कहते हैं, जिसमें 2 तरह का सेटअप होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और कुछ जो पूरे देश को अलग अलग जोन में बांटते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं, अलग अलग स्टेट्स में बांटते हैं। एक गवर्नमेंट उनको चलाती है और एक गवर्नमेंट उन सब के ऊपर एक तरह से होल्ड रखती है। कुछ पावर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, और इन दोनों में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। तो लेकिन कुछ चीजों में वो स्टेट गवर्नमेंट अलग अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट काम करती है। कुछ चीजों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है नीति निर्देशित सिद्धांत। हाँ, मतलब नीति निर्देशन का मतलब है डायरेक्शन देना किसी भी प्रिंसिपल्स को, या किसी भी जो भी आपने नियम कायदे बनाए हैं, उनको किस तरह से आप जो है उसको लागू करेंगे या फॉलो करवाएंगे, उस पे बेस। तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फेडरल सेटअप जो है वो यूएस। आयरिश कहाँ का है मैम? आयरिश कोई देश है ना? सॉरी, यार आयरिश कोई देश है ना? हाँ, आयरलैंड है ना। हाँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरल सेटअप जो है वो यूएस गवर्नमेंट से। उसके बाद में एक एक्ट है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं कह लो, वो सारी जो चीजें हैं वो इस एक्ट में आएगी। तो ये अलग से जो है वो एक एक्ट बना। मतलब इन ऑल आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, अराउंड 395 आर्टिकल्स हैं। उस आर्टिकल्स को जो है 22 पार्ट्स में बनाया, फिर 8 उसके शेड्यूल बने जो बाद में बढ़े, वो आप आगे देख लेते हैं। उसके बाद में क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं इसके, फेडरल पॉलिटी हमने डिस्कस कर लिया कि फेडरल सेटअप है। सॉवरजीन मतलब संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब हर गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना है, हर चीज के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, चाहे वो लॉ हो, जुडिशरी हो, या आपका जो पार्लियामेंट है, जिसमें भी जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती हैं किसी भी क्षेत्र में, उसको और पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट है, ये आर्टिकल है, ये है, इसके अंदर हम ये बना रहे हैं। कोई भी चीज, कोई भी नियम, कोई भी जो कहना चाहिए कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं बन सकता। तो सॉवरजीन का फेडरल मतलब फेडरल मैंने आपको भी बताया कि डुअल गवर्नमेंट है। डुअल मतलब 2 तरह की, एक स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होते हैं।
है ना। कुछ पावर, वो कुछ चीजों में इंडिपेंडेंट अपना जो है वो निर्णय ले सकता है, अपनी पॉलिसीज बना सकता है, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होते हैं तो वो सेंट्रल उसको होल्ड करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है कुछ चीजों में इंडिपेंडेंटली, लेकिन यदि कभी सेंट्रल गवर्नमेंट उससे उसका जस्टिफिकेशन मांगे तो उसके पास उसका जो है वो मांग सकती है ना, वो चेक रख सकती है। लेकिन कुछ चीजों में वो अपना काम अपनी तरह से करती है। ड्यूटीज हैं, उनको अपने राइट्स दिए गए हैं, उनको अपने उनका अपना तरीका है काम करने का, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, और इस तरह से। तो इसको फेडरल पॉलिटी बोलते हैं। और सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे समाज हैं, बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है वो भी उसी तरह से है, मिक्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही बिजनेस है, या सिर्फ एक ही तरह का काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास में एग्रीकल्चर भी है, हमारे पास में इंडस्ट्रीज भी है, हमारे पास में बिजनेस भी है, हमारे पास में वर्किंग क्लास भी है, लोअर क्लास जो है, लेबर क्लास है, वो भी है। तो एक तरह से सभी समाज के लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी अपने जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी के लिए। सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि किसी भी स्टेट का कोई एक धर्म नहीं है कि ये स्टेट का ये धर्म है, इसका ये है तो यही चीज फॉलो होगी, इसी तरह के काम होंगे, ऐसा कहीं नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी स्टेट में कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसके हिसाब से वो अपना जो है कहना चाहिए कि उन प्रिंसिपल्स को, जिसको भी वो फॉलो करता है उसके हिसाब से वो जी सकता है, रह सकता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी कहना चाहिए गवर्निंग बॉडी है, मतलब जो भी सरकार चलाते हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी रूलर कह सकते हो आप, शासक जो हैं, उनको जनता ही वहां तक पहुंचाती है। और जो वहां पे पहुंच गए उनका सबसे पहला काम ये है कि वो जनता के लिए काम करें। उसको क्या चाहिए, उसको क्या कहाँ पे उसको दिक्कतें आती हैं, कहाँ पे उसको कैसे हम उसकी जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें, ये उनका काम होना चाहिए। तो इस तरह से। और कोई भी गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है ना। कुछ टाइम के बाद में जो है फिर से चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और फिर से जनता जो है वो अपना उम्मीदवार या जो भी कहना चाहिए कि लोगों को सिलेक्ट करती है और गवर्नमेंट में भेजती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ संसद है, दो तरह के। संसद में दो हाउसेस हैं, दो अलग अलग सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा ना। और इनके ऊपर एक और जो फर्स्ट प्राइम बॉडी है वो है प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिला के हम पार्लियामेंट्री फॉर्म को कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कुछ अधिकार जो है हर सिटीजन को, हर जो व्यक्ति जिसने यहाँ पे जन्म लिया उसको कुछ अधिकार मिलते हैं कि वो अधिकार जो है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में। तो वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन जो है देता है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कहना चाहिए कि जुडिशरी का ऐसा सिस्टम है जो कि इंडिपेंडेंट है किसी भी गवर्नमेंट से। उसका काम वो अपनी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बाहर कोई भी काम नहीं कर सकता, वेदर इट इज अ जुडिशरी, वेदर इट इज अ पार्लियामेंट और एनी ब्यूरोक्रेट और एनी डिपार्टमेंट, कोई भी सेक्शन हो, सबको जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स में है, उसी को उसको फॉलो करना है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारा जो देश है वो एक सिटीजनशिप देता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर चला गया, उसने दूसरी सिटीजनशिप, दूसरे देश की जो है नागरिकता ले ली, तो फिर यहाँ की नागरिकता जो है वो वैलिड नहीं होती है। कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, बट जनरली सिंगल सिटीजनशिप है।
फिर फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपको अधिकार दिए हैं तो कुछ आपको कहना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज भी बनती हैं, आपको कुछ चीज़ों को आपको पालन भी करना है, और ये आपकी एक तरह से कहना चाहिए कि ये एक तरह से चेक है आपके अधिकारों के ऊपर, है ना। तो ये भी संविधान में जो है वो अलग आर्टिकल में लिखा हुआ। फिर प्रियम्बल को देख लेते हैं कि प्रियम्बल में क्या क्या चीजें हैं। So preamble to the constitution is the first thing which is written, is very, very important. And it says, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. And what are the main points like justice, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, and equality of status and of opportunities. And the next is fraternity by assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Then one more thing is in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1945, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. And one more point is that this two words, socialist and secular, they were added later in 42nd Amendment 1976. And there are so many amendments in this 42nd amendment, that is why it is called mini constitution. There are many more things added after this constitution is offered to the people, by the people, for the people. तो इसमें ये कहा गया कि प्रियम्बल में कि हम जो इस देश के वासी हैं, हम इस देश के जो नागरिक हैं, वो हम इस कॉन्स्टिट्यूट को इस इंडिया को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में और पूरी तरह से जो है जो कहना चाहिए सिक्योर है, वो सिटीजन को देते हैं। उसमें जस्टिस है, न्याय है सबके लिए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, मतलब स्वतंत्रता है सोचने की, स्वतंत्रता है बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, और स्वतंत्रता है कोई भी चीज जो मुझे ठीक लगती है उस पे बिलीव करने की, उस फेथ को और उसके जो भी नियम कायदे हैं उसको फॉलो करने की, और मैं चाहूँ जिसकी भी पूजा कर सकता हूँ, जिसको भी मान सकता हूँ, कोई भी रिलीजन को, कोई भी कहना चाहिए कि कम्युनिटी को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना जीवन जी सकता हूँ। और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। स्टेटस का मतलब है कोई गरीब है तो वो गरीब ही नहीं रहेगा, यदि वो चाहता है कि ये उसको यदि कोई संभावनाएं कहीं नजर आती है, या वो पढ़ना चाहता है, या वो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, ये ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी का बच्चा है तो वो उसने वही काम करना है, नहीं, वो यदि चाहता है पढ़ाई लिखाई करना वो पढ़ सकता है, वो यदि चाहता है कि मैं बिजनेस करूं या खेल में आगे बढ़ूं, है ना, या किसी आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे बढ़ूं, तो वो ऐसा काम कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटीज को ले सकता है, और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी है, उसको यूज करते हुए वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है। फ्रेटर्निटी बाय एश्योरिंग the dignity of individual and unity and integrity of the nation. तो फ्रेटर्निटी का मतलब है ऐसा कोई ग्रुप या फिर कहना चाहिए ऐसा कोई समूह या एसोसिएशन जो है, जो कि किसी भी डिग्निटी का मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, किसी भी दूसरे नागरिक की जो भी एक उसका जो एक रैंक है, जो भी उसका एक लेवल है, एक स्टेटस है समाज में, उसकी के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए जो है वो एश्योर करता है जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। कोई भी एक नागरिक की जो है उसके संप्रभुता के लिए, उसके कहना चाहिए जो भी एसोसिएशन में वो है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो
इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। मतलब हर किसी नागरिक की जो इंडिविजुअलिटी है, जो भी उसका स्टेटस है समाज में, उसको कायम रखने का एश्योरेंस देता है हमारा संविधान। उसके बाद में यही चीज बोली गई कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डेट लिखी गई कि 26 तारीख को 1949 को हम ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले दिनों में ये लागू होगा। और ये हम जो है अपने आप को ये एक तरह से कहना चाहिए कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको लागू करने की एक तरह से परमिशन या फिर अपनी सहमति देते हैं। तो ये जो है प्रीएम्बल में जो फर्स्ट पेज है उसमें लिखा गया है। और ये जो दो वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 42nd अमेंडमेंट में जो है, जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं, है ना, उसके लिए भी आर्टिकल्स हैं कि इस आर्टिकल में आप ये चीजें बदल सकते हो समय के हिसाब से। तो उस हिसाब से 1976 में ये दो वर्ड ऐड हुए। और भी बहुत सारी चीजें इस अमेंडमेंट में 42nd अमेंडमेंट में चेंज हुई मतलब ऐड हुई, है ना, जो भी समय के हिसाब से। भारत 1947 में आजाद हुआ, तो 2 साल बाद बना है संविधान। हाँ, 49 आजादी के बाद में एक बॉडी बनी। 2 साल बाद बना है। आजादी के 2 वर्ष लग गए ना, 2 वर्ष लग गए। तो एकदम से कैसे बनाओगे? आपको थोड़ी ना पता है, आपको अथॉरिटी ही नहीं है बनाने की। आप जब इंडिपेंडेंट हुए तब आपको समझ आया कि अब इसको कैसे, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस एक इंडिया एज अ एक कोई कंट्री आप नहीं उसको बोलते थे। छोटे छोटे देश थे ना, उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग राजा थे, और वो जो एक राजा था वो उस जगह का मालिक था, है ना। उसके लिए उन वहां रहने वाले लोगों के लिए वही देश था, ठीक है। ओवरऑल एज अ कंट्री कुछ नहीं था, ठीक है। जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ का रूलर एक राजा है या वो है, उनके लिए वही देश है। और जो दूसरा देश है वो उनके मतलब वो उस देश के राजा की बात थोड़ी सुनेंगे, वो तो अपने ही देश के राजा की बात सुनेंगे और उसी को फॉलो करेंगे जो वो राजा बोल रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे जगहों पे बहुत सारे राजा रजवाड़ों में बटा हुआ देश था हमारा। पढ़ा होगा ना आपने हिस्ट्री में। सरदार जी पटेल ने मिलाया सब राज्यों को। हाँ, मतलब कुछ लोग जो ऐसे थे, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी, ठीक है, वहां पे वो उनका खुद का राजा मतलब खुद का शासन चल रहा है, तो नहीं आना चाहते थे। तो फिर धीरे धीरे जो है सरदार पटेल ने कुछ स्टेप्स लिए कि भाई नहीं, आप भी मर्ज हो, क्योंकि तभी एक अखंडता जिसे कहते हैं ना, संप्रभुता, अखंडता, और एक पूरे देश का पिक्चर सामने आता है। नहीं तो पूरा जोग्राफिकली एक है और एक छोटा सा जगह जो है वो जोग्राफिकल रीजन कह लो, वो अलग है आपसे। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो, क्योंकि फिर हर कोई अपना अपना अलग अलग मांगेगा ना, क्योंकि हर जगह अलग ही थी बिफोर द ब्रिटिशर केम, है ना। जब आए उसके बाद में इन्होंने अपना अपना रूल, एक ही जगह एक ही रूलर ने, एक ही कंपनी ने हर जगह अपना सेटअप किया, तो उनका एरिया बढ़ता चला गया। तो एक बहुत बड़े भूभाग पे उन्होंने शासन किया, लेकिन उसको एक तरह से यूनाइट करने का वो भी इन्हीं को जाता है क्रेडिट, ठीक है, कि भाई हम कम से कम सेक्युलर जो है वो धर्मनिरपेक्ष को बोलते हैं। हाँ, सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता को बोलते हैं। इसीलिए मैम उनके नाम पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना ना, वहाँ पे हाँ, गुजरात में बना ना बहुत बड़ा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ, इसीलिए सरदार जी पटेल ने छोटे 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 राजाओं से मिलके और उनको हाँ, निवेदन किया कि आप जुड़ो उसमें। हाँ, कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लिए, कुछ लोग नहीं किए, और कुछ तो ब्रिटिशर के ही अंडर में थे कुछ जगह, तो फिर वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वहां तो कोई राजा ऐसा ही नहीं।
लेकिन कुछ जगह थी जहाँ पर उनका होल्ड नहीं था, कमजोर था, तो उनको फिर मिलाने का काम सरदार पटेल जी ने किया। तो मेन फीचर्स प्रीएम्बल के, दिस कंसेप्ट वाज टेकन फ्रॉम द यूएसए, द लैंग्वेज, how it is written, like each and every sentence, each and every article, how it should be framed, it is taken from France. And you can say the constitution is the basic, you can say this preamble is the basic structure of a constitution. So this preamble is very, very important, right? Now, GOI, that is Government of India, it consists of three bodies, three main bodies. Three main bodies, what are those? First is executive body, A. B is parliament, C is judiciary. Now in executive body, we have president, vice president, and all cabinet ministers. And in parliament, we have Lok Sabha and Rajya Sabha. And in judiciary, we have a Supreme Court. And under the Supreme Court, there are various high courts in different states. And below high courts, there are different district courts, which function at a district level, at a local base, you can say. And one high court, there may be two benches of the same high court of the same state, maybe in two different cities. And Supreme Court also, they may have other bench, but here the Supreme Court is the supreme in judiciary system. You can, because जुडिशरी में हाई कोर्ट को जुडिशरी नहीं माना क्या? हाई कोर्ट भी तो है इतने सारे। है, लेकिन सुप्रीम रखा है, सिर्फ एक ही बॉडी को लिखा है। वैसे तो लोकसभा में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत तरह के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स काम करते हैं, राज्यसभा में बहुत तरह के है, बट जो मेन है वो इसमें डाला है, जुडिशरी में सारा है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज द होल। हाई कोर्ट फंक्शंस अंडर सुप्रीम कोर्ट, and there are various district courts which works under high court. Means it is a division, right? So that each and individual person can go to the nearest court, not to the small issues. They don't need to approach Supreme Court each and every time. So to solve the conflicts between the various sectors, maybe between the people, between the executives, or maybe other public related matters or conflicts, they approach at different levels. But if somebody, it's not that you directly approach to the Supreme Court. First you have to file a case in your जैसे इधर एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के अंडर में आता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा मेंबर। तो यहाँ भी प्रेसिडेंट लिख देना था इनको, प्रेसिडेंट के अंदर में तो सभी आ जाते हैं। हाँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी ये तीन है, तीन में मतलब बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, पर ये सब आते तो प्रेसिडेंट के नीचे ही है ना। क्या चीज? प्रेसिडेंट तो हेड होता है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे आएंगे ना मंत्री, तो राज्यसभा मेंबर। तो यहाँ भी सिर्फ प्रेसिडेंट लिख सकते थे ये, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा है, यहाँ पर यहाँ इस साइड तीनों के नाम लिखे। हाँ, लिख लो आप, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। यहाँ पे सुप्रीम बॉडीज लिखी हैं, लाइक प्रेसिडेंट है वैसे, लेकिन उसके पास सारे पावर्स होते नहीं हैं, ठीक है, पावर कहीं और होते हैं, उनका तो नाम है ही नहीं यहाँ पर। इस तरह आप मत देखो, बेसिकली मेन जो चीजें हैं वो सिर्फ इसमें लिखी गई हैं। इट डजंट मीन कि जुडिशरी मीन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि वही रूल करता है। नीचे के जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स पे पहले आप जाते हो, उसके बाद में आपको लगता है यहाँ मुझे जस्टिस नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट में आपको नहीं मिलता है तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लोकसभा में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी हम आगे पढ़ेंगे। ये तो एक रफली आपको एक आइडिया देने का है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब क्या, पार्लियामेंट मतलब क्या, जुडिशरी सिस्टम मतलब क्या। बस सिंपल सी ये चीज है कि जुडिशरी का क्या फंक्शन है। तो भाई जो भी दो पार्टीज हैं, दो डिफरेंट, उनमें कुछ
कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ कहना चाहिए कि कुछ चीजों पे वो एग्री नहीं करते हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, या फिर किसी को लगता है कि इसने मेरे अधिकार को छीन लिया, या मुझसे किसी ने कोई गलती कर दी है ना, जो मेरे लिए सही नहीं है, जो समाज के लिए सही नहीं है, तो आप जाके वहां पे न्याय ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ है या यहाँ चीटिंग हुई है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा यदि होने लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ, ये जो 3 चीजें बताई हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी, तो किस तरह का प्रश्न पूछेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कितने भागों में जो है वो शासन करती है, या फिर किस तरह की बटी है? ये 3 चीज आप बता रही हैं, मतलब किस तरह का प्रश्न अगर कोई पूछेगा तो हम ये 3 चीज उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, GOI का मतलब है 3 मेन सेक्शंस हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो अपना काम करती है, पार्लियामेंट का अपना काम है। अब जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी का मैंने लिखा, नहीं, वो नहीं हम पूछ रहे क्या अंदर क्या होता है, ये पूछ रहे सिंपल सा एक शाब्दिक जो प्रश्न है कि ये जो 3 चीज बता रही हैं, हाँ, किस तरह का प्रश्न पूछेंगे, हम ये 3 चीज बताएंगे। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये तीनों चीजें आती हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। और जैसा जो है भारत देश जो है इस तरह से ये शासित होता है इन तीनों चीजों के माध्यम से। इन तीनों चीजों, ये पूछ रहे थे, इस तरह का कोई प्रश्न मान लीजिए पूछ दिया तो ये तीनों चीजें कैसे बताएंगे? हाँ, अब इसमें आप एक तरह से और ये सोच सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है वो क्या करता है कि कोई भी नियम, एक्चुअली नियम बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का, है ना, जो वहाँ के लोकसभा के जो मिनिस्टर्स हैं, या एक पर्टिकुलर चीज को आपको बदलना है या कुछ ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो लोकसभा में पहले जाता है, उसके बाद में ये राज्यसभा में जाता है, वहां से पास हो जाता है, तो उसको अप्रूव कौन करता है? वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। ठीक है, इसीलिए 3 चीजों में इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि सबसे पहले जो बिल होता है वो लोकसभा में पेश होता है मैम, कि राज्यसभा में? नहीं, लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अच्छा, ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर जाता है? हाँ, आपने पहले बनाना है ना, पास किसको करेगा वो? पार्लियामेंट्री बॉडी क्या करती है, पहले कोई भी चीज को चेंज करना है या कोई नया नियम लाना है तो ये बनाना पड़ेगा ना आपको, उसके बाद में आप हायर ऑफिसर को दोगे कि हाँ अब इसको आप अप्रूव करिए कि ये आप कर सकते हैं, ये नियम बनेगा कि नहीं बनेगा। हो सकता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई कैबिनेट मिनिस्टर की बॉडी उसको ऑब्जेक्शन लगा दे कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसे आप फिर से बनाइए, फिर से चेंज करिए, तो फिर से वो वहां आ जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा जो होता है उच्च होता है, राज्यसभा वो राज्य वाला होता है ना? ये राज्यसभा उच्च सभा है, मतलब हायर, हाँ यही लोअर है। वही हम कह रहे थे, जो लिखा हुआ है दूसरे स्टाइल से लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऊपर है उसके नीचे है, और ये जो लिखा हुआ है जो नहीं, कहते तो हम उसे उच्च सदन है, लेकिन काम सारे लोकसभा में होते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि लोकसभा में वो मेंबर्स हैं जो आपने चुने हैं, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं जो जिनका डायरेक्टली लिंक नहीं है आपसे, जनता से, वो ऊपर से ही सिलेक्ट होके आते हैं नॉमिनेशन से राज्यसभा में। लोकसभा में आपके, लोकसभा नाम ही इसलिए है कि आपने उनको चुना, और जो लोकसभा के मेंबर्स जिसको राज्यसभा का मेंबर राष्ट्रपति चुनता है और लोकसभा का मेंबर जनता चुनती है, तो जनता ज्यादा पावरफुल है ना, जनता के द्वारा, जनता द्वारा शासन डेमोक्रेटिक है ना। इसके अलावा मोर देन 545 के अराउंड होते हैं लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा में 250 और कुछ नॉमिनेशन से आते हैं, तो बहुत कम है। और ये जो मेंबर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी के लीडर्स हो, या फिर मतलब ये कहीं किसी भी एरिया को बनाता है राज्यसभा मेंबर, वो हीरोइन है रेखा है, जया भादुड़ी है और हेमा मालिनी है, सब जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको सबको राज्यसभा मेंबर बना दे। हाँ, मतलब गवर्नमेंट ही बनाती है, गवर्नमेंट ही बनाती है डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट आपका कोई
पब्लिक का कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। तो जो भी और पावरफुल कौन है वैसे देखा जाए तो लोकसभा पावरफुल है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, सारा जो काम काज है वो यहीं पे होता है, यही मेंबर्स डिसाइड करते हैं। लोकसभा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है ना, प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ज्यादा वहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो भी मेजॉरिटी की पार्टी है या आपस में सब मिल करके जिसको भी ज्यादा वोट मिलता है वही कहना चाहिए कि जो मंत्री परिषद का जो हेड होता है, जिसको वो हेड चुनती है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है। तो लोकसभा में मैम जो जाते होंगे सदस्य, जो चर्चा करने के लिए जाते हैं, वो मतलब किसी न किसी पार्टी से होते रहते होंगे ना? वो पार्टी से ही होते हैं। एमपी सुना है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, एमपी। तो अभी आपने जो कहा वो किसी से हो सकते हैं, वो राज्यसभा में होते हैं क्या? मतलब किसी पार्टी से जरूरी नहीं है? हाँ, वो राज्यसभा। अच्छा। लोकसभा में भी निर्दलीय जो राज्यसभा में भी होती है पार्टी, राज्यसभा में वाला भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है कोई सी भी। हाँ, वो कर लेता है, लेकिन कर लेता है, पर वो उसको इलेक्शन लड़ना कंपलसरी नहीं। मैम अगर हम कोई चर्चा करना चाहें, नॉर्मल जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकता है? मतलब किस बारे में? मतलब किसी भी चीज के ऊपर ये चीज हमें चर्चा करनी, योग के बारे में मान लीजिए हमको नियम कानून लेके जाना है कि ये चीज पेश होना चाहिए। हाँ, तो आम नागरिक नहीं जा सकता है? नहीं, आम नागरिक आप सांसद के पास जाओ ना, सांसद आपको सॉल्व करेगा। पहले सांसद लेवल पे आप जाओ, वहाँ पे आप बात करो। पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है ना, जैसे आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, वहाँ आप अपना कुछ राइटिंग में कुछ लिख के आप दे सकते हो। इस तरह से आम आदमी कई सारी नीतियां हैं, जैसे मान लीजिए योग के क्षेत्र में सरकारी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, न टीचर की आ रही है, नॉट अबाउट ये प्रॉब्लम बहुत है। हर कोई भी आप जैसे तो इस पे भी आवाज मिलकर आवाज उठानी चाहिए सोशल तभी ये नियम कानून बनेगा। जैसे अन्य विषयों के लिए सरकार सबके लिए कर रही है, इसके लिए तो कोर्सेज दे दिए, पढ़ाई तो हो रहा है, बट उनके लिए टीचर भी तो होना चाहिए। पढ़ के कहाँ जाएंगे वो? पढ़ के कहाँ जाएंगे? रोजगार होना चाहिए बेसिकली। ये तो बोल रहे हैं ना, अपो दीपो भव, वो तो स्किल डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सब अपना अपना खुद कर अपो दीपो भव पे ही काम कर रहे हैं। वो सबको बोल रहे हैं आप इतने स्किलफुल हो जाओ कि आप उसी से अपनी अर्निंग करो, आप जॉब की तरफ मत दे। नहीं, जॉब नहीं, ये बात सही है, लेकिन जब इट्स नॉट दैट आप अपना कर सकते हो, आप उसके इंस्टीट्यूशंस बढ़ा सकते हो। हर आदमी अपने बेस पे काम करने के लिए उसको फंड की जरूरत होती है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज की जरूरत होती है। अब यदि गवर्नमेंट ये कहे कि एक कोई भी शहर है उसमें आप चलिए 5 इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हो, आप अपने आप काम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, और हर आदमी अपना अपना नहीं खोल सकता है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खुल जाएं, जैसे कि आपने सुना होगा ना, यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, तो योगा के भी थोड़े से बढ़े। नरेंद्र मोदी वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे मैम, उनका बोला था, उन्होंने बोला था भाषण में कि वेलनेस सेंटर्स बहुत जल्दी ओपन होंगे, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया। और उसमें जब वेलनेस सेंटर खोलेंगे तो उसमें योग डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी। वेलनेस सेंटर ही खोले। हो गया आपका प्रॉब्लम का सॉल्व। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। So let's see about the schedules in the constitution. Main just we are looking the main schedules. Like as I earlier said, India's constitution has 395 articles, and these are divided into 22 parts. Earlier, there were 8 schedules at the time of commencement of this constitution, and later it was like 448 articles in 25 parts and 12 schedules. All right. And there are different schedules which addresses different you can say sectors. Like the first schedule is about
the number of states and union territories, how many states, how many union territories, and what are the criteria to, announce a particular region as a state or a particular city or a region as a union territory. So all those are, written very specifically, very particularly in Article number 1, in first schedule. Likewise, in second schedule, there are, something about the salaries of president, the governors, judges, so like that. So, and of course, some article addresses the language. I think it was 8th schedule, which addresses the language. Basically, if you see, there is no official language of a country, right? It's not written in anything, this is the national language or official language. But yes, Union Government of Republic of India considers Hindi as a, a language, and English also a secondary official language. And there are, you can say, languages, as we have seen, there are so many languages which are, listed in the Constitution, but they are not supposed to say as a national language of India, you can say. So officially, there are 22 recognized languages as per our Constitution. All right, there are so many. I'm not, you can say, saying those languages, because 22 languages, it includes Assamese. Let's see, I'll speak up. Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Manipuri, Malayalam, Konkani, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Santhali, Bodo, Maithili, and Dogri. So these are the, the recognized, you can say, languages. All right. Languages. Sorry. एग्जाम में नाम भी आएंगे क्या कि ये लैंग्वेज? नहीं, नाम नहीं आते हैं, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये सारी लैंग्वेजेस हैं. इनमें से कुछ लैंग्वेजेस को ना बाद में ऐड किया गया, लाइक 1967 they added Konkani, Manipuri, and Nepali. In 92, there is an amendment, that is the 21st amendment. So these were added. Sindhi was added in 67, and Konkani, Manipuri, Nepali added in 92. And in 2003, Santhali, Maithili, Bodo, Dogri were added in 2003. So like that. And fundamental rights are in Part 3 of Indian Constitution. Do you remember this? Part 3 of Indian Constitution, 1949. The articles are from 12 to 35. This is important. Fundamental rights. Earlier, when they were drafting this constitution, they were added at that time, 1949, and from Article 12 to 35, they are described in detail. Right to equality, it is in 14 to 18, right to freedom from 19 to 22, like that. So these fundamental rights, you should remember. And for Article 19 addresses, there are 6 fundamental freedoms. This is very, very important. What are those freedoms? Speech, expression, assembly, form association, some movement, residence, settlement, profession, occupation, trade, business, and so on. And then right against exploitation. It is described in Article 23, 24. Then right to freedom of a religion. It is in Article 25 to 28. Cultural and educational rights, it is from 29 to 31. And right to constitutional remedies. This is said to be the heart and soul of the Constitution. It is described in Article 32. तो ये कुछ शेड्यूल्स हैं इम्पोर्टेंट, जो कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए.
कि शुरू में जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे, बाद में ये 448 हो गए, और 22 पार्ट्स में थे जो 25 पार्ट्स में हो गए, 8 शेड्यूल्स थे जो 12 शेड्यूल हो गए। अब ये जो सारे शेड्यूल्स हैं वो अलग अलग चीजों को एड्रेस करते हैं, जैसे कि पहले कुछ भी नहीं था कि आप किस तरह से एक देश को अलग अलग उसमें बांटेंगे। अलग अलग रीजन में बांटना जरूरी है क्योंकि एक ही जगह से सारे देश को गवर्न करना मुश्किल है, तो अलग अलग राज्यों में उसको बांटा। कितने राज्यों में बांटा, पहले कितने थोड़े अलग थे, यूनियन टेरिटरीज कम थी, अब जो है वो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट में आप देख लो कि आपको स्टेट्स का तो पता होगा, यूनियन टेरिटरीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज में आपको बता देती हूँ, एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ए से शुरू करते हैं, चंडीगढ़ है, डी से दादरा नगर हवेली है, और दमन दीव है, फिर दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप को अभी 370 आर्टिकल में 35 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग, ठीक है। और लक्षद्वीप है ना, पौंडीचेरी है। तो इस तरह से ये कुछ कुछ चीजें आप याद रखोगे तो आपको बाकी चीजें समझ आएगी कि बाकी सारे स्टेट्स होंगे। उसके बाद में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो वैसे तो नेशनल लैंग्वेज बोलने से कोई नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन गवर्नमेंट की वो हिंदी मानी जाती है, और इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में काम होता है जनरली, लेकिन 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको की मान्यता दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कुछ लैंग्वेजेस जो है वो बाद में जोड़ी गई, जो मैंने आपको अभी बताई थी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें राइट जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का जो है वो 19 से 22 में है। और कौन कौन सी स्वतंत्रता, तो 6 स्वतंत्रताएं हैं। एक तो बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, उसको रजिस्टर करा सकते हो, किसी भी मूवमेंट का पार्ट बन सकते हो, कहीं पे भी आप रह सकते हो, है ना। अब रहने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रह लिया, उसके लिए अपना प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करके वो जगह पे आप रह सकते हो, सेटल डाउन हो सकते हो विद इन अ कंट्री। कुछ कुछ जगहों पे छोड़ के, जो कुछ हिली एरियाज हैं वहां पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे कंजेशन हो जाएगा, इसलिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं वही वहाँ की जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आप रह सकते हो। और फिर कोई भी प्रोफेशन आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका फैमिली काम ये है तो आप वही करना है आपको, नहीं, आप कुछ और काम भी कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप ले सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कोई आपका शोषण ना करे, उसके बारे में आर्टिकल 23-24 में है। रिलीजन को आप फ्री हैं, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो और उस धर्म को स्वीकार कर सकते हो, उसके बारे में 25-28 आर्टिकल में है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जो आपका कल्चर है जिसको भी आप फॉलो करते हो, या आप एजुकेशन के बारे में आपका जो भी अधिकार आपको हैं वो 29-31 आर्टिकल में है। और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, या यहाँ पे ये बाधा आ रही है, तो उसके बारे में आर्टिकल 32 है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोला गया, आर्टिकल 32, ठीक है। टाइम काफी हो गया है मेरे ख्याल से, आज हम यही खत्म करते हैं। 1-2 लेक्चर में आपका ये जो है सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। कुछ मुश्किल एज सच तो नहीं था, आई होप। नोट्स